केसरी न्यूज़ चैनल और हम बैठे हैं दिल्ली के नरेंद्र तिवारी भवन में। आज यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का मेन उद्देश्य एमएसपी गारंटी कानून एक राष्ट्रीय स्वरूप में यहाँ पे 18 स्टेटों के यहाँ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं और कम से कम 250 संगठनों के लगभग वीएम सिंह की कॉल पे यहाँ किसान ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग इनको बोल सकते हैं और हमारे बीच में ये खुद अपना परिचय देंगे। इनके पास जो हमारे असम, नागालैंड यानी कि 8 स्टेटों का लाखों किसानों का इनका एक नेटवर्क है वहाँ पे और पूरे देश का मुद्दा किसान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो फल, सब्जी या बागान हो। और आपके साथ में यहाँ पे हमारे फ्रेम में यहाँ पे जगबीर गसोला हैं जिनको सर्वसम्मति से हरियाणा की तरफ से कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया है। तो वेलकम टू यू सर। व्हाट्स योर गुड नेम? Commander Champlain, सो व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन? Hill Farmer Union. हाउ मैनी फार्मर्स आर कनेक्टेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन? We are more than 1 lakh. 1 lakh. So what type of agricultural activity in your states? We are doing this vegetable, fresh vegetable and fruits. जी जी। This is mostly fresh and vegetable and fruits. So what are the challenges you are facing in your routine life, and you are connected with VM Singh organizations in a national network, Yes. and how you connect with this? See, for our farmer, if we calculate the input price and then labor price and everything, when we sell our produce, we are not getting the remuneration. Remunerative. Yeah. जी। जैसा our expenditure example 10 rupees हमें बेचा है 8 रुपया, तो हमारा नुकसान है 2 रुपया। तो so हमें चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इम्प्लीमेंट करना है। So why are you not demanding the MRP, benefit price? You are just asking minimum support prices, Yes. but your input cost is not Yes. in changeable form of the profitable business. Yes. So See, why not you seek MRP? yeah, at least once we get the MSP also, it will be good for us. See, when we set MSP, it's a minimum. So मतलब अगर You are base seeking price, minimum yes, basis. अगर base price 10 होता है, it should not come below 10 rupees. Even it should be more than that. even you are deprived from the Yes, minimum. हो सकता है 15 या 20, लेकिन 20 का नीचे में नहीं गिरना है, वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें चाहिए। So what are your commitment in your states? See, this we have been pushing this issue to हमारा state government, but this is a central subject, so the central government has to take it very seriously, and we urge the central government to see that minimum support price is implemented to other produce as well. Have your state supported your movements till the date? Yes, because we have lots of issue in our state. So, but for MSP, we would like to coordinate with all the Kisan Union of all India, so that we can pressurize the central government to implement MSP. 8 or 9 states connected in your region, Yes. hill regions you can say. Yes. So will you see on the roads, in rallies, road shows, awareness programs? First, we will conduct a meeting. जी। Meeting organize करना और discuss करना है साथ में, and then later we will do the road show and all. Have you find any positive energy from the today meeting? You are Yes. sitting with all India network. Yes, I find that all the Kisan Union, they are very united. So hopefully, government will listen to us. जी आपके साथ 7-8 स्टेटों का कोऑर्डिनेशन, जी वेस्ट बंगाल से लेके आपका दूर तक के नेटवर्क में आपको हरियाणा का कोऑर्डिनेटर चुना गया है। जी जी आपको पहले हमारे की तरफ से बहुत बधाई, हमारे चैनल की तरफ से। आपके लिए हरियाणा में एक कैडर बिखरा पड़ा है और एक चेहरे पे जैसे आप सर्वसम्मति से आपको ये पद दिया गया है, जी तो आप 4 बड़े रीजन हैं हरियाणा में, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पॉलिटिकल माइलेज हैं लोगों की। आप कैसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा को आप कोऑर्डिनेट करेंगे? देखिए लंबे समय से हम आंदोलन से जुड़े हुए हैं और हरियाणा का एक भौगोलिक क्षेत्र जिस तरह अलग अलग हिसाब से जैसे बटा हुआ है, एक नहरी क्षेत्र है, एक हमारा रेतीला क्षेत्र है, एक जैसे शहरी क्षेत्र के नज़दीक है, तो ये अलग अलग है भौगोलिक परिस्थितियों में भी। लेकिन हम हर ज़िले के अंदर, हर हमारे जोन के अंदर काम कर चुके हैं।
और लंबे समय से का जो अनुभव है सभी पूरे हरियाणा के साथियों के साथ जैसे हमारे अच्छे तालमेल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे में भी हमने लंबे समय काम किया और उन अनुभवों के आधार पर संयुक्त मोर्चे के अंदर हमने बड़े बड़े फैसले दिलवाए। उन फैसलों के अंदर जैसे राजनीतिकरण को दूर करना, राजनेताओं को स्टेज से दूर रखना, ये काफ़ी बड़े अच्छे फैसले रहे हैं। हम चुनाव से दूर रखना चाहते थे सभी किसान नेताओं को, लेकिन जिन्होंने हमारे जिन नियमों को तोड़ा उसके कारण किसान मोर्चा टूट गया। अब तो आपके कंधों पे चुनौती है, तो आप इसको नज़दीक भविष्य में क्या हरियाणा में रोड शो दिखाई देंगे? क्या हरियाणा में गांव-गांव में प्रदर्शन दिखाई देगा? किस तरह का असर आपके कोऑर्डिनेटर बनने के बाद दिखाई देगा? आज जो हमारे 15-16 जिलों के जो साथी आ रहे थे और जिन्होंने सर्वसम्मति से चुना है, बल्कि हमारी तो इच्छा है कि भाई हम किसी के साथ सभी के साथ मिल के काम करेंगे और सभी साथी सहयोग देंगे। ये भी हमने पहले शर्त रखी है कि अगर आप सहयोग दोगे तो हम तैयार हैं, नहीं तो अदरवाइज ये नहीं कि किसी मनमर्जी से चुना हुआ कोई उसके अंदर जनता साथ नहीं देती। और किसान साथ तब देंगे जब हर जिले की टीम हमारे साथ खड़ी होगी। और सभी साथियों से हम पहले भी दोबारा से उम्मीद करते हैं जिन्होंने साथ दिया उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के सभी साथियों को, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बधाई हो कि आपके द्वारा जिस प्रकार से जो हमारे गाँव को जो किए गए कार्यों के ऊपर आपने जो सहमति जताई, उसी के आधार के ऊपर आज जो पूरे हरियाणा की तरफ से हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको हम ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। और इस आंदोलन को जो एमएसपी की मांग है, जो पहले भी हमने जो 3 कानून के दौरान भी हमने पहले उठाई थी कि एमएसपी के मुद्दे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और पहले हमारा बल्कि पहले नंबर पे ही इसको रखा जाए, जिस वजह से मोर्चे के कुछ नेताओं को जो हमारी बातें हजम नहीं हुई, पसंद नहीं आई, आज वही नेता हमारे मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर और बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और किसान को अगर एमएसपी मिलती है तो प्रति एकड़ के हिसाब से 10-15 हज़ार के बीच बेनिफिट भी होगा। जगबीर भाई, एक बड़ी चुनौती है जी। हरियाणा में नेताओं का विरोध होता रहा जी। अब वो कहीं लंबित मुआवजे पे अब भी कई जिलों में हो रहा है। जी जी जी। और साइलोज पे सारी फसल डालने के लिए सरकार ने फरमान भी जारी कर दिया है। तो साइलोज और फसल खरीद भी अभी मंडियों में होगी, सरसों की खरीद होने वाली है। तो आप उस एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करके एक सही दिशा में, जिसकी बेस लाइन बताई जाती है कि एमएसपी कानून हर समस्या का निवारण है, जी, लाभप्रद मूल्य, तो उसको कैसे जोड़ पाएंगे आप? देखिए, जो अचानक अब 3 कृषि कानून क्या थे कि जो हमारी फसल थी उसको सीधा अडानी अंबानी के गोदामों में से जाने से बचाना, यही थे 3 कानून। वो इनडायरेक्टली हरियाणा में वो इनडायरेक्टली आ गए। अब तो जो हमारे साथी कह रहे थे, जो किसान नेता थे, जो ये कह रहे थे कि हमने आंदोलन जीत लिया, जिन्होंने फूल मालाएं पहनी, पूरे प्रदेश और देश का जिन्होंने चंदा लिया और जिन्होंने जीत बता करके किसानों को गुमराह किया, आज उनसे ये जनता सवाल करेगी भविष्य के अंदर। साइलोज का मुद्दा विधानसभा में गूंजे, साइलोज के सामने किसानों का प्रदर्शन हो, क्या उस स्थिति में आप लीड कर पाएंगे हरियाणा में? हाँ, हमारे प्रयास रहेंगे। हम जल्द ही हरियाणा प्रदेश सत्र की अलग से एक और मीटिंग करेंगे दोबारा से, बल्कि 27 तारीख को हिसार के अंदर भी एक हमारे संगठनों के, अपने संगठनों की ही मीटिंग होनी है, उसके अंदर भी हमारे सभी साथियों को बुलाएंगे। इस जो एमएसपी गारंटी का जो मोर्चा बनाया गया है, इस मोर्चे से हरियाणा के सभी संगठनों को जोड़ेंगे एक स्टेज के ऊपर। जैसे 17 संगठनों ने हरियाणा के अंदर जो ये पिछला आंदोलन उठाया था, उसी तर्ज के ऊपर हम सभी साथियों से सलाह मशवरा करके दोबारा से इस आंदोलन को उस बड़ी मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में 2 यूथ एनर्जी हैं दोनों, और इनके पास एक चुनौती है। ये दोनों की एक ही राय है कि वे हैव कंसल्ट योर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन ए वन अम्ब्रेला, और जब भी एक अम्ब्रेला के नीचे, एक विचार के नीचे छोटे छोटे इश्यूज़ को इकट्ठा करके एक बड़े इश्यूज़ पे एक मैंडेट तैयार करेंगे, तो निश्चित तौर पे हरियाणा में और मेघालय में, नागालैंड में एक बड़ा बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं। जो भी सवाल आपको इन कोऑर्डिनेटर से हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कंसल्ट करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।